Okay. Yes, ma'am. Okay. So Kirandeep Kaur is here. So we Hi, will ma'am. start. Hi. Hi, Kiran. How are you? I'm good, ma'am. Thank you. Okay. So welcome everyone once again. Today we have with us Kirandeep Kaur, and she has secured All India rank 331 in this CSE 2020. And one more important thing about her that she has also scored one of the highest marks in the interview, which is 212, a very good marks in the interview. So welcome Kirandeep Kaur and many congratulations. I would like to introduce you to with our audience. So how you are feeling right now? Ma'am, I'm feeling very Hello. busy. It was a very long journey of 4 years for me. So Hello. after finally seeing my name on the holy, as we call it, there was a sense of relief that I've done it finally. Yeah, I can Hello. understand. Yes, just one second. Yes, ma'am. Guys, can you please mute yourself and you can drop your queries in the chat box? Sure. Okay, fine. So, Kirandeep, who would you like to give your credit for your success? Like your parents, friends, teachers, anyone? Like, किसे आप देना चाहते हो? Yes, ma'am. Choosing one person for this would be very difficult. बहुत लोगों का रोल होता है इस जर्नी में. पेरेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. मतलब जब भी पहली स्टेजेस में नहीं होता था तो पेरेंट्स यही बोलते थे कि इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम देंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहता है साथ में, जिनके स्टडी ग्रुप भी होते हैं साथ में, तो उनका बहुत रोल रहता है स्टडी में भी, मोटिवेशन में भी. इसके अलावा टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है गाइडेंस में. सही गाइडेंस नहीं होती तो हमारी जर्नी और स्ट्रेच हो सकती है. तो True, टीचर्स true, का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें. true. सही बात है because sometime it can even stretch for 6 year and 7 year, and Yes, until unless you do not have a good support system, either yes, in the name of parents or mentor or friends or teachers, then it become more difficult. True. yes. Great, great. So, Kirandeep, tell us about your educational background. Like, because यहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे viewers हैं जिनको जानने में interest होगा कि आपकी education journey कैसे थी, from your Yes, schooling to ma'am. college and yeah. यस मैम. मैं अपनी स्कूलिंग मैंने कपूरथला से की है, विच इज माय होम टाउन इन पंजाब. उसके बाद +1 +2 में मेरा नॉन मेडिकल स्ट्रीम था. तो आफ्टर दैट आई परस्यूड बीटेक. आई डिड इंजीनियरिंग इन Okay. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम NIT Jalandhar, and I passed out in 2017, and thereafter I've been preparing for the civil services. Hello. I think there was some network issue. Yeah, Kirandeep, continue. Okay, ma'am. So I'll repeat myself. So I've done my Yeah. schooling from Kapurthala itself, which is my hometown in Punjab. उसके बाद मैंने बीटेक करी है in electronics and communication engineering, and I passed out in 2017, and thereafter I've been preparing for the civil services. Okay. So basically, you had an engineering background, right? Yes, ma'am. Okay, so Kirandeep, like how difficult it was for you from shifting your background from engineering subject to art subject, because in UPSC most of the subject actually falls under the humanities category. So how difficult it was for you? Yes, ma'am. Initially थोड़ा difficult था, because engineering में हमें आदत होती है ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, टेक्निकल इश्यूज ज़्यादा मतलब पढ़ने की. लेकिन जब हम आर्ट्स पे स्विच करते हैं तो हमें बहुत सब्जेक्टिव चीजें पढ़नी होती है. मतलब इश्यूज लाइक फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, व्हिच कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. So, True. so it is very subjective, but at the same time, कुछ टाइम के बाद it just feels so interesting.
मतलब हर एक चीज को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं हमें। तो बस जैसे जैसे हम ज्यादा पढ़ते हैं तो बस इंटरेस्टिंग ही ज्यादा लगता है, चैलेंजेस कम ही लगते हैं। ओके, तो आप जितना जितना टाइम आप धीरे धीरे स्पेंड करने लगते हैं विथ क्यूरियोसिटी, तो यस धीरे मैम। धीरे आपके लिए चीजें आसान होने लगती हैं। यस। राइट। ट्रू। ये बात सच है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं एट यूपीएससी लॉन्च, जिनका बैकग्राउंड साइंस से में होगा, कॉमर्स में होता है, एंड देन सडनली व्हेन दे स्टार्टेड रीडिंग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो अचानक से उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट वी यस ऑल्सो कीप टेलिंग देम द सेम थिंग, लाइक spend some time, develop your मैम। curiosity, and then it will become very easy. यस Great. मैम। True, true. Well said. So basically, who motivated you to prepare for this examination? यस मैम। मैम एक्चुअली मेरे ताया जी हैं, मतलब माय डैड्स एल्डर ब्रदर। Mm-hmm. ही वाज इन दी सेंट्रल सर्विसेज, ही इज रिटायर्ड नाउ। तो Okay. उनको देख के ऐसे मोटिवेशन होती थी, वो भी ऐसे एनकरेज करते थे कि इट्स अ वेरी गुड मतलब करियर ऑप्शन फॉर यू। एंड इसके अलावा माय डैड इज आल्सो इन दी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो वो भी ऐसे जब जैसे फॉर एग्जांपल कपूरथला में एज ऑफ नाउ देयर इज अ लेडी ऑफिसर हु इज सर्विंग एज द डेप्यूटी कमिश्नर। तो जब ऐसे ट्रांसफर होती थी डीसी की, तो पापा आके बताते थे कि अभी एक लेडी ऑफिसर आए हैं एज डीसी, तो आप भी उनके जैसे बन सकते हो। तो ऐसे ये चीजें बहुत मोटिवेट करती थी। और इसके अलावा मदर फादर दे ऑलवेज एनकरेज मी to do whatever I choose to do. And first, I pursued my engineering. उसके बाद भी जब मेरा मन हुआ कि okay, let's do UPSC, they supported me. So it was a very strong support system that helps you do everything that you want to pursue in life. Okay. So Kirandeep, as you told us that कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग थे जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में थे, Yes, ma'am. सेंट्रल और स्टेट, तो Yes. वो कितना बड़ा एज होता है इन ऑर्डर टू एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, या प्रिपरेशन करने टाइम पे जो आपको कुछ लेसन सीखने होते हैं जो आप उनसे सीख सकते हो, तो इसका कितना बड़ा रोल होता है अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में या सराउंडिंग में कोई होता है तो? Yes, ma'am. यस मैम, डेफिनेटली इसका एडवांटेज होता है, क्योंकि अगर आप देखते हो अपने आसपास के कोई है ऑलरेडी सर्विसेज में, तो वो थोड़ा ऐसे गाइडेंस दे सकते हैं आपको कि यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, लाइक जैसे कुछ न्यूज में इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये भी मेंशन करूंगी क्योंकि मेरे ताया जी ने बहुत पहले एग्जाम दिया था, तो और अभी पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें मेरे को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि अभी राइट नाउ मेरे को क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। बट यस, एट द बैक ऑफ माई माइंड इट वाज देयर कि हाँ, मेरे नोन में है, उन्होंने भी किया था पहले, मैं भी कर सकती हूँ। और प्लस एक चीज, इंटरव्यू में ये चीज बहुत काम आई मेरे, क्योंकि इंटरव्यू में माय तायाजी आल्सो यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स विद मी, इश्यूज विद मी, ताकि what should be your way to look at things. तो वो डिस्कशन काफी काम आई मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। ओके, सो इमेजिन करिए अगर जैसे, बिकॉज वी हैव लाइक डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेंट हु हेल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो अगर किसी की फैमिली में ऐसा कोई नहीं है या करीबी कोई जान पहचान का नहीं है, सो क्या उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा अगर वो जस्ट अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो? यस मैम, आई एक्सेप्ट इट, ये डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज इनिशियल स्टेज पे जो गाइडेंस होती है वो काफी क्रूशियल होती है। मतलब आप जो राइट पाथ है उसे डाइवर्स भी कर सकते हो। मतलब चूजिंग द राइट पाथ इन द इनिशियल स्टेज इज वेरी क्रूशियल। बट फिर भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अभी इंटरनेट पे काफी सोर्सेज हैं, काफी टॉपर्स की डिस्कशंस हैं, जिनको देख के हम मतलब अपना पाथ फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि हम जब टॉपर्स की डिस्कशन सुनते हैं तो हमें यही पता चलता है कि सारे फील्ड से, सारे बैकग्राउंड से, सारे फैमिली बैकग्राउंड से लोग आते हैं, लोग एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ऐसा कोई
मतलब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है ये आपकी फैमिली में कोई है सर्विसेज में या नहीं है। और हम इंटरनेट का अच्छा यूज कर सकते हैं, टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज का अच्छा यूज कर सकते हैं इस रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज भी बहुत क्रूशियल हो सकती है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, या फिर जिनके ग्रुप में कोई नहीं है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, या यस कोई मैम। सिलेक्टेड है। ओके, यस मैम। ओके, ग्रेट, ग्रेट। एंड वन मोर थिंग, लाइक यू मेंशन दैट कि आजकल बहुत सारे रिसोर्स हमें इंटरनेट से मिल जाते हैं, यस राइट? मैम। तो बहुत से एस्पिरेंट, स्पेशली जिन्होंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है, उनको यही नहीं पता होता कि हाउ टू फाइंड द राइट मटेरियल, बिकॉज राइट नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो कैसे पता करें कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ से हमें राइट मटेरियल मिल सकता है जिसको हम अपने प्रिपरेशन में एज अ नेविगेटर की तरीके से यूज कर सकते हैं। यस मैम। मैम जब मैंने भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने भी ये चीज फेस करी थी कि इतने सोर्सेज है उनको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है। तो इसके लिए आई फॉलो द सेम थिंग। मैंने बहुत सारी टॉपर्स की वीडियोस देखी, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, और उनको पढ़ के मैंने हर एक अपने सिलेबस के टॉपिक की एक एक स्टैंडर्ड बुक नोट डाउन कर ली। अ, मतलब सभी डॉक्टर्स इसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं दैट यू हैव टू कीप योर सोर्सेज लिमिटेड बट यू हैव टू फोकस ऑन मोर रिवीजन। तो Yes. ये प्रोसेस मैंने पहले ही कर ली थी बहुत सारी वीडियोस एंड ब्लॉग्स पढ़ के कि कौन से टॉपिक की कौन सी बुक मेरे को करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी है तो उसकी लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी स्पेक्ट्रम है, एंड सो ऑन। मतलब ये मैपिंग पहले ही कर लो। तो आई थिंक इसके बाद तो प्रोसेस इजी है, बस तो बुक्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है। That's it. Yeah, well said. Actually, this is true. Even when I started my preparation, so initially मुझे भी बहुत डाउट होते थे इन सब चीजों को लेकर के कि किस बुक को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में देर आर टू बुक्स जो एक जनता वो फॉलो कर रही है, दूसरी वो फॉलो कर रही है। देन इवन बाद में ये रियलाइज हुआ कि एक को ही फॉलो करो, बट उसका आप मल्टीपल रिविजन करो। दैट विल बी द बेस्ट सोर्स रादर देन going through multiple sources. That's true. Okay, so one more thing. Nowadays, actually, CSAT is again becoming a very crucial point, right? पहले लगता था बस ये तो क्वालिफाइंग है तो हो जाएगा, बट आजकल का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, स्पेशली इस साल का जो सीसैट का एग्जाम था, सो व्हेन इट कम्स टू सीसैट, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन Yes, स्ट्रेटजी फॉर ma'am. सीसैट? मैम एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने भी सीसैट की ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी और मेरा बिल्कुल मार्जिन पे था सीसैट का स्कोर। तो उससे ओके, मतलब फॉर्चुनेटली मेरा क्लियर हो गया, लेकिन इस बार ऐसे था कि सपोज आई डोंट गेट माय नेम इन द लिस्ट, तो आई हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर सीसैट। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि आई कवर ऑल द टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडली दो टॉपिक्स है हमारे सीसैट में, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो ट्रू। मैथ्स में मैंने सारे अपने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे, जो भी टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मतलब आई हैव अ लिस्ट, जैसे जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथ्स के सेक्शन में, Simple interest, profit यस and मैम। loss, या percentage. प्रॉफिट एंड लॉस, एज, कैलेंडर, क्लॉक, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस एंड सो ऑन। ये मतलब मैंने Yeah. सारी लिस्ट बना ली थी टॉपिक्स की। और मैंने हर एक टॉपिक पे 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे। Oh, मतलब इससे हेलो yeah, you're audible. Yeah. हेलो You're मैम audible, आवाज आ रही Kirandeep. है? आवाज आ रही है?
Guys, I think there is some internet connection from her end. So let's wait for another 1 or 2 minutes. Okay. And if you get any doubt and any queries, either you can post all your messages in the chat box, or at the end of the session, you will be getting a chance to ask question directly from her. Okay, I think there was some technical issue on her end. So it's okay. We will wait for another 2 minutes. उनको फिर से ज्वाइन कर लेते हैं. And how many of you are actually writing mains this year? Anyone in this group? No, ma'am. Okay. And कितने लोग प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के लिए? प्लान तो नहीं कर रहे हैं. Okay. Guys, please mute yourself. Hey, Kanksha, how are you? Hi, ma'am. I'm good. How are you? I'm also fine. Just was traveling and listening your, conversation. It was wonderful. Guys, are you getting benefited with Kirandeep course strategy? Yes, ma'am. Sure. Okay, let me introduce myself. Who is the new student? I'm Major Rashmi Rana. I'm co-founder of UPSC Lounge. Okay, and Kanksha is our precious faculty. Hey, Kiran. This is Major Rashmi. How are you? Congratulations, dear. Unmute, please. Aditya, unmute Kirandeep. I can't hear her. I'm sorry. Yeah, Aditya. Hey, Kiran. Congratulations once again. Thank you so much. So, guys, these are double century girls. आपने सचिन तेंदुलकर and विराट कोहली का double century सुना होगा, but she is the real hero because she has got the double century in UPSC personality test. Okay. Thank you so much. And so carry on your conversation. I thought you dropped in between Kirandeep, so I thought I'll keep my students engaged. That's why. And carry on, Akanksha. Wonderful conversation. Kiran, just tell me. I want to ask you one question only. Can you Yes, hear ma'am. me? Yes, Just ma'am, I can hear. before leaving the meeting, give one formula to my student so that they will always remember. Yeah, Kiran ma'am told us this, and we followed and we cracked it. Okay, Okay, so ma'am. just write it down Yes, ma'am. because you are the girl of your own hard work. So I'm proud of you, girl. Fine. Thank you so much, ma'am. Thank you. Anytime. So guys, continue. You can ask the question. Please ask as many as question you want to ask Kirandeep ma'am because later on she will be an IAS officer and you have to take an appointment to meet her. Okay. Here she is available without any tickets and any meeting. Okay. No appointment required. Okay. Bye, guys. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Okay, carry on. Yeah, okay, ma'am. Yeah, Kirandeep. So, yeah, you were telling about your CSAT preparation, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, even I'm getting a very good insight, like how you actually handled your CSAT part, making a list from the scoring area and then doing practice on those topics. How did you tackle with this comprehension part? Because ये बहुत यार tough होता जा रहा है धीरे धीरे. Yes, ma'am. तो Yes, ये ma'am. आपने क्या किया? Comprehension. Hmm. Yes, ma'am. मैम कॉम्प्रीहेंशन में एक्चुअली यूपीएससी में बहुत सब्जेक्टिव है कॉम्प्रीहेंशन. जब हम क्वेश्चन पेपर दे के आते हैं तो सारे इंस्टीट्यूट्स की फीस भी बहुत डिफर कर रही होती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो यूपीएससी के पास के पेपर थे उस पे ही स्टिक करा, क्योंकि आई थॉट जो यूपीएससी का थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन को सही करने का, आई शुड फोकस ऑन दैट और उसी अकॉर्डिंग मेरे को सोचना है. तो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज द अजम्पशन इन दिस पैसेज, व्हाट इज द इन्फरेंस दैट यू डिराइव फ्रॉम दिस पैसेज,
what is the most crucial points that you derive from this passage. तो इन keywords का क्या क्या मतलब है, तो ये past year questions solve करके हमको पता चलेगा. So I just practiced the past year questions from 2013 to the previous year, and solve करने की strategy ये हो सकती है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत क्रूशियल है सीसैट में, क्योंकि पेपर भी लेंदी होता है और मैथ्स को इंग्लिश को बैलेंस करना होता है. तो इंग्लिश में आई यूज टू डू दी स्मॉलर पैसेजेस फर्स्ट, जो स्मॉल पैसेजेस हैं और उनके फॉलोइंग एक एक क्वेश्चन है, तो वो छोटे छोटे पैसेजेस जल्दी हो जाते हैं टाइम में, रादर देन कि हम बड़े पैसेजेस में मतलब टाइम वेस्ट करें और उनके आगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो. तो डू दी स्मॉलर पैसेजेस फर्स्ट, then move on to the bigger passages and solve previous year UPSC questions. Okay, here I want to ask a small doubt. Again, जैसे कि we have a mixed crowd from English medium as well as Hindi medium. और एक ऐसा भी क्राउड है जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही मीडियोकर है. लाइक वो ये क्लेम नहीं कर सकते दे आर टू गुड इन इंग्लिश और दे आर टू बैड इन हिंदी, तो वो बीच में रहते हैं. सो ऐसे सीसैट का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं एंड इफ एनीवेयर हम स्टक कर रहे हैं, तो आप हिंदी वाला जो उसका ऑप्शन दिया होता है साइड में ही, तो वो कितना यूजफुल हो सकता है अगर हम दोनों को कंपेयर करके चीजें चले तो? ओके मैम, टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट बी वेरी यूजफुल इन दिस, क्योंकि मैंने हिंदी वाले कभी पढ़े नहीं है, तो मैं मेरा उस पर कमेंट करना वुड नॉट बी राइट. ओके, इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है. सो बेसिकली आई गॉट अ फेयर आइडिया. लाइक अगर हमें अपना सीसैट देखना है, सो एज यू सेड दैट वी हैव टू थिंग, वन इज मेंटल एबिलिटी एंड अनदर इज आवर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. सो टैकलिंग मेंटल एबिलिटी, वी नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक जो कि पूछे जा रहे हैं पास्ट ईयर के पेपर से, हमें उसे सॉल्व करना है. एंड कॉम्प्रिहेंशन की जो बात है, पहले तो हमें कीवर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन practice practice and practice, right? Yes, great, because this year we got many queries jahan pe bachchon ka paper 1 clear ho raha hai but they are lagging in CSAT, and this is something which turns into the nightmare actually. Yes. So great. Okay, now एक बहुत क्लीशे सा सवाल है, आप जो आई थिंक सबको पता होगा जो यहाँ पे हैं, बट ठीक है अगर जिनको नहीं पता होगा उनके लिए आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल. सो जब आप अपने प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जैसे आपकी जो रिसोर्सेज थे, फॉर एग्जांपल सिलेबस, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, उस कैसे आपको प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करने हैं, जो डिकोड मेथड्स होते हैं, इन सब चीजों में आपने कैसे काम किया था, आपने कैसे यूज किया था इन सब रिसोर्स का? यस मैम, मैम दो चीजें आपने मेंशन करी है, सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चन. तो सिलेबस को हमें कैसे करना है, मैं प्री और मेंस का दोनों का बता देती हूँ. फर्स्ट स्टार्टिंग विद द प्री, सिलेबस हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. पहले तो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स थे, फॉर एग्जाम्पल सारे सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए. इवन अगर मिडीवल हिस्ट्री है जो लोगों को बहुत डराती है, ऐसा सब्जेक्ट है, वो भी मतलब छोड़ के नहीं जाना. कोई भी शॉर्ट नोट्स नेट से डाउनलोड कर लो, रीड दो शॉर्ट नोट्स एंड गेट इट डन. तो कवर ऑल द टॉपिक्स. सेकेंड, solve the previous year questions that are being asked by the UPSC. तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स से भी नहीं करे होंगे, वो करंट अफेयर्स में भी नहीं होंगे, बट दो क्वेश्चंस वो आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रिवर्स पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार रिपीटेड होते हैं. इस बार भी इनफैक्ट रिवर्स पे क्वेश्चन आया है. तो रिवर्स का आई थिंक कोई ऐसे कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं है जहाँ पे रिवर्स का सारा उसका ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, what are the cities located on those rivers, what are the states from where those rivers pass. तो ये कुछ नोट्स हमें खुद से भी बनाने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल गूगल से, विकीपीडिया से, जस्ट ओपन अ पेज एंड मेक योर नोट्स फ्रॉम इट. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये फायदा होता है कि जो टॉपिक्स हम बाय चांस मिस कर देंगे,
हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं है, करंट अफेयर्स में भी नहीं है, बट वो रिपीट हो रहे हैं हर साल। वो टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो हम खुद के एंड पे उनके नोट्स बना सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। दिस इज फॉर फ्री। And moving on to mains may be same cheese. First of all, we have to cover all the topics that are mentioned in the syllabus. For example, GS1 में geography, history, art and culture, society, ये सारे topics हमें individually cover करने हैं। Broadly ये topics हैं, लेकिन society में भी आगे topics हैं like communalism, casteism and so on. इन सब टॉपिक्स पे एक एक पेज के या तो हम इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या कोई और मटेरियल से हम अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट इज दिस के टॉपिक हमें सिलेबस वाइज कवर करना है। सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यूपीएससी के देख सकते हैं और कुछ ट्रेंड्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन GS2 गवर्नेंस पार्ट मैंने ऑब्जर्व किया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो ईयर टू ईयर रिपीट हो रहे हैं, ईयर आफ्टर एवरी अदर ईयर रिपीट हो रहे हैं। तो वो टॉपिक्स तो हमें पक्का प्रिपेयर करने हैं। और इनफैक्ट इस बार मेंस में आया भी है क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ब्रॉडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से टॉपिक्स से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ताकि कोई भी हमारा टॉपिक मिस ना हो। Okay, so basically we have to actually have a very strong grip on our syllabus and the previous year question paper, and they should act like our navigator. Yes. And accordingly we have to prepare, right? Yes. Yeah, true. Because even if you will look at the pattern of this year prelims examination, there were plenty of questions which actually, if you will just trace the source, you will not get it, and you will get it that okay, this was in the news. That's how it came into your paper. There were a lot of questions this year. Yeah, that's true. That's true. Okay. One classic question, a very classic question, which I think every aspirant कभी ना कभी तो सुनता है। क्या एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए? क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? Yes, मैम एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट, बट मैंने उसको मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटीज फॉलो करी थी। जैसे आई टोल्ड बिफोर कि मैंने हर एक टॉपिक की मैपिंग कर ली थी कि कौन से टॉपिक का विच स्टैंडर्ड बुक आई फॉलो। तो पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, ऐसे ज्योग्राफी की जो मेरे बेसिक सोर्सेज थे वो +1 एंड +2 की एनसीईआरटीज थी। 2 एनसीईआरटीज +1 की है और 2 +2 की है, तो टोटल 4 एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी। तो ब्रॉडली ऐसे 3 सब्जेक्ट्स थे जिनके लिए मैंने एनसीईआरटीज फॉलो करी थी। फर्स्ट इज ज्योग्राफी, सेकेंड इज इकोनॉमी। इकोनॉमी की एनसीईआरटी है +2 की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवियल, आर्ट एंड कल्चर की तीनों की डिफरेंट एनसीईआरटीज है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स है, वो आई थिंक +1 की बुक है, और एंशिएंट की RS शर्मा है। मिडीवियल की भी आई थिंक मेरे को नाम नहीं आ रहा है, मिडीवियल की। यस मैम, यस सही। तो आई थिंक मैंने इन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और बाकी की आई थिंक बाकी की स्टैंडर्ड बुक से ही आई थॉट इट इज सफिशिएंट, आई जस्ट नीड टू रिवाइज मोर एंड मोर। Okay, talking about NCERT of history subject, I don't know whether you came through this doubt or not, but a lot of students have this kind of a doubt, ma'am, whether we should follow new NCERT or old NCERT. Yes, so आपने क्या follow किया था basically? Yes, ma'am. Actually, मैंने दोनों ही पढ़ी थी। Old NCERTs are the ones, ancient की RS शर्मा है, medieval की सतीश चंद्रा, and the new ones are जो themes है, themes 1, 2, theme 3। Actually वो themes वाली भी मेरे को भी बाद में पता चला था कि ये new NCERTs है, तो मैंने वो पढ़ ली थी बिकॉज मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी टॉपिक। और एक्चुअली वो इतनी बल्कि नहीं है और उनमें फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे वो मतलब एंजॉय करके पढ़ सकते हो आप। तो मैंने दोनों ही पढ़ी थी और दोनों पढ़ भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ओल्ड में है, कुछ चीजें न्यू में है,
तो ऐसे अगर आपके पास टाइम है आप दोनों कवर कर सकते हैं. Yeah, what is my personal experience? When we read old NCRT, we get a lot of facts, and when we read Yes. new NCRT, we get question in more like a thematical manner and बहुत Yes. analytical manner, जैसे कि आजकल UPSC में पूछ रहा Yes. है. So if you have to Yes. strong your facts, तो आप वो कर लो. Otherwise आप यूँ कर लो, और अगर टाइम है तो दोनों ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. Yes. Because Yes. hardly ज्यादा टाइम नहीं लगता पूरी NCRT को Yes. पढ़ने में. Yes. Ma'am. एक और सवाल है. Okay, so there is a question actually from a student side. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तमिलनाडु की जो बुक्स है फॉर एंशिएंट एंड मिडाइवल की, वो कुछ लोग प्रेफर करते हैं पढ़ना एज कंपेयर टू ओल्ड एनसीईआरटी. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस क्वेश्चन? ओके मैम, एक्चुअली मैंने भी खरीद के तो रखी थी तमिलनाडु की, बट मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का, तो Same. आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू आंसर दिस. बट मैंने सुना है काफी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, बट मैंने पर्सनली नहीं करी थी, तो आई कांट कमेंट. या एक्चुअली हमें अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखना चाहिए और उसी पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, रादर देन, Yes, ma'am. बिकॉज बुक्स तो बहुत अच्छी बहुत सी अवेलेबल है. यस Okay. मैम. एक और क्वेश्चन अगेन जो कि बहुत से स्टूडेंट फेस करते हैं, बिकॉज एज आई कैन सी यू हैड अ वेरी गुड academic background, like topper in 10th, topper in 12th, then going to NIT Jalandhar with a very good marks. तो आपके लिए फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी आपने हाईएस्ट क्लासेस की पढ़ना स्टार्ट की, ज्योग्राफी 11th एंड 12th, राइट? या फिर कुछ सब्जेक्ट की सिर्फ आपने हायर क्लास की? आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जो कि बहुत एवरेज हैं अपनी स्कूल लाइफ में, या फिर जिन्होंने बहुत अच्छे से स्कूल लाइफ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ी है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, और अभी वो बिगिनर हैं. तो क्या वो अगर 6 से भी पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो कर सकते हैं, राइट? यस मैम, अगर उनके पास टाइम है और उनको भी बिगिन ही कर रहे हैं वो, तो यस उसमें कोई इश्यू नहीं है. वो 6 की एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं स्टार्ट, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है और अंडरस्टैंडिंग मतलब डीपर होती रहती है. सिंपल चीजों से वो बिगिन करते हैं एनसीईआरटी में, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर ही होगी. और इसके अलावा मैं एक और चीज इसमें ऐड कर सकती हूँ कि अगर कुछ इश्यूज समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो. बहुत सारे चैनल्स हैं जो कुछ टॉपिक आपको कोई समझ नहीं आ रहा, तो जस्ट टाइप दैट टॉपिक एंड यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो आ ही जाएगी. तो ऐसे जैसे ज्योग्राफी में अब हमें बहुत विजुअलाइज करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो उसके लिए आई थिंक वीडियोस काफी हेल्पफुल हो सकती हैं, बिकॉज विजुअल मीडियम विल यू नो हेल्प यू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. तो इसलिए अगर ऐसे स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझने में मुश्किल आ रही है, तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो वो वीडियो. हाँ, ये बात भी आपने बहुत सही बोली है कि बिकॉज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते पढ़ करके, तो देयर वी कैन टेक अ हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोस व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन यूट्यूब, राइट? ट्रू. ओके, नाउ अभी तक बहुत बोरिंग सवाल हो रहे थे, लेट्स मेक इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. सो एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम श्योर देयर विल बी सम सब्जेक्ट जो आपको बहुत बोरिंग लगता होगा when you were preparing for this examination. So what was your least interesting subject and how did you deal with that? Okay. Ma'am, least interesting एक्चुअली मेरे लिए एंशिएंट और मिडीवियल था, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं और वो कभी याद हो नहीं पाते, तो इसलिए बहुत सारी रिविजन चाहिए होती है. तो मेरी स्ट्रैटेजी इसके लिए यही थी कि बार बार रिवाइज करते रहो. और कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने डाउनलोड कर लिए थे कि मतलब जस्ट लाइक 30 और 40 पेजेस, जिसमें सारी मिडीवियल हो, सारी एंशिएंट हो. तो अगर मेरे पास एनसीईआरटी दोबारा रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो आई जस्ट गो थ्रू दोस शॉर्ट नोट्स. और इसके अलावा इकोनॉमी जैसे आपने मेंशन किया, उसमें भी चीजें समझने में बहुत टाइम लगता है और समझ आती भी है जल्दी. तो उसमें भी आई थिंक मतलब I made use of YouTube videos. जो टॉपिक समझ नहीं आते थे, I just searched those topics on YouTube and short videos से समझने की कोशिश करती थी. Okay.
यही से निकलता हुआ there is another question like since you know that this exam is very actually lengthy, like it will take minimum 2 years, 1 year when you are preparing and 1 year will goes to your prelims, mains and interview and then final result. तो almost 2 साल लग जाते हैं आपको क्लियर करने में, राइट? तो इतनी लॉन्ग टाइम के लिए हाउ टू कीप आवर मोटिवेशन हाई, कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, मेंटल हेल्थ कैसे रखनी है, फिजिकल हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है, इस एक प्रिपरेशन को बोरिंग नहीं बनाना है, हाउ डिड यू टैकल ऑल दीज थिंग्स? यस मैम, मैम इस चीज में आई थिंक यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और आप कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं होगी, मतलब 365 डेज ऑफ द ईयर यू कैन नॉट स्टडी। तो इसके लिए यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है पढ़ने की, और बाय चांस अगर आप बर्नड आउट फील कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी दैट गिव यू हैप्पीनेस। कुछ जो हॉबीज हम बोलते हैं, या फिर मूवीज देख लो, जो भी आपको मतलब अच्छा लग रहा है, टेक अ ब्रेक। ये ब्रेक्स आप मतलब इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, या तो आप ये ब्रेक्स टाइमली मैनर में कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वीकेंड पे जस्ट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, वॉच अ मूवी, परस्यू योर हॉबी। या फिर आप तब, मैं इंडिविजुअली कैसे करती थी, जब मैं बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रही हूँ, मेरे से पढ़ हो ही नहीं रहा, तब मैं कुछ कर लेती थी, बट आई ट्राइड टू स्टडी एज मच एज आई कैन इन अ कंटिन्यूअस मैनर। तो या एंड मोटिवेशन के आई थिंक 2 फैक्टर्स हैं, एक तो आपकी इंटरनल मोटिवेशन कितनी है, प्लस आपके पास जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको कितना मतलब एनकरेज कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स। और आपको नेगेटिव लोगों को भी अपने से दूर रखना है, यू हैव टू स्टे वेरी well aware of those people, and yes, you have to cut yourself out of the negativity, you have to let positive people in, and you have to be internally motivated कि मैं ये एग्जाम अगर प्रिपेयर कर रही हूँ तो व्हाट्स माय गोल। मैं जब ऐसे डिमोटिवेटेड फील करती थी तो फिर मैं सोचती थी कि 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर मेरा एग्जाम ये क्लियर नहीं होता, और अगर 5 साल बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आएगा, ओ माय गॉड अगर मैं 1 साल और अच्छे से पढ़ लेती तो मैं बन सकती थी। तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट वांट टू गिव अप, आई जस्ट वांटेड टू गिव माय 100% to this exam. So that was the thing that I used to do. Great. Basically, if you have a clear vision towards your dream and आपको पता है internally, तो आप कहीं ना कहीं सेल थ्रू कर ही ले जाते हो। बट अगर आप इंस्पायर्ड होते हो बाहर के फैक्टर से, पर्क से, बेनिफिट से, कहीं ना कहीं तो आपका मोटिवेशन और वो चीजें धीरे धीरे आपकी ब्रेक होने लगती हैं। सो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग था। So that we can sense here. Great. Okay, nice. So one more thing, like again, I'm sure आपने बहुत से mock test वगैरह दिए होंगे, right? Both for prelims and mains. So like ये कितना useful होते हैं आपके preparation में जब आप prepare करते हो तो? Yes, ma'am, mock test बहुत ज़्यादा important है। For example, pre में I think we have to take care of broadly 2 things. First is कि हमको questions कितने attempt करने हैं अपने final day पे, and second वो questions हमें within 2 hours खत्म करने हैं। तो ये दोनों चीज़ों की practice हम तभी कर सकते हैं जब हमने पहले test solve करे हुए हैं। तो टेस्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था बट मैं क्वेश्चन ये सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही, क्या मैंने रिवाइज नहीं किया, या फिर मेरा कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, या मेरा अभी फैक्ट्स मेरे को याद नहीं हो रहे, या फिर मैं कोई सिली मिस्टेक कर रही हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन का कोई कीवर्ड सही से रीड नहीं करा, एंड सो ऑन। मतलब अब आपके मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक। और फिर आप अपना कुछ मतलब
डिफाइन कर सकते हो कि कितनी रेंज तक मेरे को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और सपोज मतलब मेरा टारगेट ऐसे होता था कि मेरे को 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और मेरे मॉक टेस्ट के बेसिस पे मेरे को पता होता था कि मेरे अराउंड 65 करेक्ट होंगे, अराउंड 25 नेगेटिव में जा सकते हैं। तो ये पैटर्न आप धीरे धीरे सॉल्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सेकंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो आपको विद इन टाइम भी वो सारे क्वेश्चन करने हैं और ओएमआर शीट फिल भी करनी है, एंड तक नहीं छोड़नी, फिल करनी वो चीज, बबल्स फिल करने हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से मतलब यू कैन इम्प्रूव, तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। और जब आपने अपने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि वी स्कोर वेरी लेस मार्क्स, राइट, इनिशियली। सो उस टाइम पे वो जो एक हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन होती है, या वी फील डीमोटिवेटेड कि हमने 3 बार लक्ष्मीकांत फिनिश की है बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, तो हाउ डिड यू टैकल ऑल दीज थिंग्स जब आप करते थे? Yes, ma'am. Initially, yes, ma'am. No score करना is natural because मतलब इसमें कोई डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। हमको इस एग्जाम में पॉजिटिविटी हर स्टेज पे चाहिए। थिंक पॉजिटिव कि ओके इट्स ओके, 35 अभी हो रहे हैं और लेकिन मेरे को 65 करेक्ट तक पहुंचना है, तो मेरे को अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है ताकि मैं वो 65 करेक्ट तक पहुंचूं। तो 35 अगर अभी गलत हो रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यू हैव टाइम टू इम्प्रूव, ताकि फाइनल में आपकी 65 करेक्ट हो, 35 पे आप ना स्टक रहो। तो 35 अगर गलत हो रहे हैं, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन देम एंड इम्प्रूव। इस एग्जाम में अगर एक चीज, एक वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है इम्प्रूव, 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 कीप इम्प्रूविंग। Now I am understanding कि आपके इतने हाई स्कोर क्यों थे इंटरव्यू में, बिकॉज यू आर फिल्ड विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड यू मेंटेन दोस पॉजिटिव एटीट्यूड इवन जब आपके मार्क्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, एंड स्टिल यू नो दैट कि ओके इट कैन इम्प्रूव। सो दिस इज समथिंग आई थिंक जो बहुत हेल्प करता है इस एग्जामिनेशन में, एंड आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज थी कि आपके इंटरव्यू के में इतने अच्छे मार्क्स आए. So I think we can see that thing, and definitely we are going to learn a lot from this session. Your not only the thing what you are telling related with preparation, but the internal and soft skills like never give up wala attitude and positive thinking. All these things, very important thing. Great. Okay. Now coming to again one crucial aspect, which is optional. So how did you choose your optional? Because you are having some engineering background and your optional is political science, right? So how did you choose political science as your optional? Yes, ma'am. इसके मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने सोचे थे पॉलिटिकल साइंस लेने के। फर्स्ट फॉर मी इट वाज कि पॉलिटिकल साइंस में ओवरलैप काफी था जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में आपकी हेल्प कर सकता है पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स में हेल्प कर सकता है, एंड होल GS2। आई थिंक GS2 में पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है, वो हम पॉल साइंस में पढ़ लेते हैं। तो दिस वाज वन फैक्टर। एंड सेकेंड वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है, और वो मतलब इतना वास्ट भी नहीं है कि अनमैनेजेबल हो और आप सिलेबस कवर ना कर सको। एंड थर्ड थिंग वाज पॉलिटिकल साइंस की परफॉर्मेंस, मतलब यूपीएससी में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो एवरेज स्कोर वाज डिसेंट, 250 अराउंड एवरेज आ रही थी कंसिस्टेंटली, तो इट इज अ डिसेंट स्कोर, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। मतलब इट इज अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस। कई लोग मैथ्स भी चूज करते हैं, मतलब उसका जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है, बट उनका सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, तो मैथ्स में भी 300 तक स्कोर हमको देखने को मिलते हैं। तो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस। आपको खुद को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। आप कितना कमिट कर सकते हो अपने
ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को या फिर आपको स्विच करने की जरूरत है. इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस आई थिंक. लेकिन कुछ फैक्टर्स आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस कैसी है, मटेरियल अवेलेबल है, ओवरलैप आपको देखना है जीएस के साथ, एंड सो ऑन. So it's a very, I think, important point when we choose our optional, because there are a lot of factors which is involved here कि हमें कौन सा choose करना चाहिए. For example, again, like you said, कि हमें हमारी strength and weakness पता होनी चाहिए. That is very important thing. And plus other factors like availability of resource, and then कि उसमें marks कितने आ रहे हैं, और भी overlapping है कि नहीं. So yeah, all these things of course is important. Okay, now coming to the last stage of this exam, which is interview, and jahan pe aapne actually you scored a pretty well, one of the highest marks in the interview. So tell us about your UPSC interview process basically, and how did you achieve this highest marks in 2020? एंड बेसिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन रिकॉल है, कर पा रहे हो जो आपसे पूछा गया था, तो वो सारे एक्सपीरियंस आप अपने प्लीज शेयर करिए. यस मैम. मैम, इंटरव्यू में आई थिंक 2 चीजें ब्रॉड मिली है. एक तो मतलब मैंने काफी जगह सुना है कि इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट. बट लास्ट टाइम इन माई 2019 इंटरव्यू मैं इस चीज से काफी मिसलेड हो गई थी, शायद मैं समझ नहीं पाई थी. तो मैंने मतलब सिर्फ पर्सनालिटी पे फोकस किया, पढ़ाई नहीं की इसके लिए, इंटरव्यू के लिए. तो आई डिड नॉट स्कोर वेरी वेल. बट इस टाइम आई थिंक मैंने मतलब मेरा फोकस था पर्सनालिटी, यस, बट ऑल्सो नॉलेज. तो दोनों चीजों पे मेरा फोकस था. आई हैव टू स्टडी वेरी हार्ड फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, प्लस पर्सनालिटी पे तो फोकस करना ही है. द थिंग इज, जब आपने सारे टॉपिक्स पढ़े होते हैं अपने इंटरव्यू के, तो ऑटोमेटिकली goes up and your personality becomes better with knowledge. So that's why I think interview के लिए broadly 2 चीजें जो important है. You have to study all the things that are needed to be read for the interview, and you have to present that knowledge in a desirable manner. तो इसके लिए कुछ इंटरव्यू में कुछ चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है हमारा, उसमें जो भी हमने इनपुट्स किए हैं उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. फॉर एग्जाम्पल, हमारी हॉबीज क्या है, हमारे होम स्टे से क्वेश्चन पूछते हैं. सेकेंड, हमारा जो ऑप्शनल होता है उस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थर्ड, हमारा जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंजीनियरिंग था, उस पे भी क्वेश्चन पूछे थे. एंड फोर्थ, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे हैं. ये ब्रॉड इश्यूज हैं. एंड फॉर मी एज अ वुमेन, मेरे लिए वुमेन इश्यूज भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब वुमेन इश्यूज पूछ लेते हैं, चाइल्ड इश्यूज टू लेडी कैंडिडेट. So yeah, these were the broad areas that were to be covered. एंड इन्हीं एरियाज पे मेरा इंटरव्यू बेस्ड था. मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे को पता था कि इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो मेरे उस टाइम अफगानिस्तान वाला इशू बहुत न्यूज में था कि तालिबान टेक ओवर कर रहा था, तो उसकी तालिबान की पूरी हिस्ट्री यू हैव टू रीड ऑन इट. फिर पास्ट ईयर ट्रांसक्रिप्ट मैंने ये क्वेश्चंस भी पढ़े थे कि दे आस्क्ड दैट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन सीरिया, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यमन. अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, इनको आपने 4-5 लाइनों में कैसे करना है संजय उनको. तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस थी. पहले इशू को समझना, देन यू हैव टू कंसोलिडेट दैट इशू इन 5 to 6 लाइन. तो इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करने की जरूरत है टू प्रिपेयर ऑल दोज एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. एंड मूविंग ऑन, मेरे से क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, मेरे से फॉर्चुनेटली प्रिडिक्टेबल एरियाज पे ही पूछे गए थे क्वेश्चंस. फ्रॉम माय होम स्टेट पंजाब, I was asked question on the drug problem that is there in Punjab, and second about the low sex ratio in Punjab. Then from my optional international relations, I was asked very conceptual questions. Okay, in the past years, has India involved itself more in conflicts? What do you think? Has India involved itself more in conflicts, or what's the scenario?
तो ऐसे काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके लिए आई वाज रेडी विद ऑल माय नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सो आई वाज कंफर्टेबल इन डीलिंग विद दैट। इसके अलावा वुमेन इश्यूज पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, फॉर एग्जांपल अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। एंड मूविंग ऑन, मेरी हॉबीज से भी पूछा था। मेरी हॉबी थी राइटिंग पोएम, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि रिसाइट योर पोएम, टेल अस व्हाट हैव यू रिटन। तो मैंने पोएम अपनी रिसाइट करी थी। तो द इंटरव्यू वाज ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस, बट मेरा स्कोर इतना अच्छा इसलिए गया आई थिंक बिकॉज मैंने हर एक चीज को बहुत ही ओवर थिंक किया था कि मेरे को सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक चीज पे, और कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। मतलब अगर मेरे को पता है कि पॉलिटिकल साइंस है मेरा ऑप्शन, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के होंगे क्वेश्चंस, वुमेन इश्यूज के होंगे क्वेश्चंस, पंजाब पे पूछेंगे क्वेश्चंस, तो सारे टॉपिक्स मतलब अच्छे से प्रिपेयर करते। Okay, and one more thing, like जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो we are like very nervous and ये सारी चीजें होती हैं, और उसकी वजह से sometime even we do blunders in interviews. Like कई बार मैंने ऐसे इंस्टेंस सुने हैं कि लोगों को कैपिटल के नेम नहीं याद रहते, समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू सम मॉक इंटरव्यूज. So there was a girl, she opted Rajasthan cadre, but she was not knowing that how many districts are there in Rajasthan, something like that. So how to tackle such kind of a situation when the question is very simple and you do not know the right answer or you had given the wrong answer. तो कैसे उन चीजों को टैकल करना होता है वहां पे? ओके, यस मैम। मैम आई थिंक नर्वस होना बहुत ही नेचुरल है। मैं भी बहुत नर्वस थी इंटरव्यू के पहले, बट इन द इंटरव्यू आई थिंक हमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चंस को हमें हम बोल सकते हैं सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी मैम आई डोंट नो, और कौन से क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है तो हम बोल सकते हैं कि सॉरी सर मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, तो उसमें आपका कुछ नेगेटिव नहीं जाएगा। एंड सेकंड, अगर आप नर्वस हो तो आई थिंक इनिशियल स्टेज में आप इंटरव्यू में ज्यादा नर्वस होते हो, तो वो the panel will also try to comfort you, make you comfortable and make you calm at that situation, क्योंकि वो भी समझते हैं कि बच्चे नर्वस होंगे, तो वो भी ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा कंफर्ट करने की मतलब कोशिश करते हैं। एंड मतलब इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिस होगी टू बी इन दैट सिचुएशन, to be in front of a panel of of people who know so much and उनके सामने आप ऐसे आंसर कर रहे हो। आई थिंक मॉक टेस्ट से आपकी ये फियर वाली सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। आप प्रैक्टिस मोर थ्रू मॉक टेस्ट। ओके, सो बेसिकली आपने यूपीएससी लॉन्च में आपने इनरोल किया था फॉर इंटरव्यू प्रोग्राम, राइट? So how we are different from other institution or how we helped you in your interview, आप उसके बारे में बताइए। Yes ma'am, मैम यहाँ पे बहुत एक तो सेशंस जो थे बहुत ही टारगेटेड थे फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। फॉर एग्जांपल, देयर वाज दिस सेशन ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो पर्सनालिटी टेस्ट में हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, हमें अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कैसे करना है, टू चूज द राइट वर्ड, तो उनके बारे में एक सेशन था। एंड बॉडी लैंग्वेज पे जो सेशन था, सर ऐसे एनकरेज करते थे कि आस्क योर डाउट्स, आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट। तो मेरे को एक बहुत ही सिली कह सकते हो डाउट था, मतलब मैंने हर एक चीज पे बहुत ओवर थिंकिंग करी थी। तो मेरे को एक प्रीवियस मॉक टेस्ट में फीडबैक मिला था कि when you entered the room, you were looking very nervous. तो मैं सोच रही थी कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि I was nervous, मतलब इतनी नर्वस मैं नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि I was entering the room, और जो चेयर पड़ी थी वहाँ पे जहाँ पे बैठ के मेरे को बैठ के इंटरव्यू देना था, तो while going from here to there,
I was not making eye contact. मैं नीचे देख रही थी फ्लोर की तरफ. Okay, okay. So, but फिर मैंने ये चीज मैम से पूछी क्लास में. तो मैम ने मेरे को बताया कि while entering the room, you have to start greeting them. तो उससे क्या होगा? You enter, you start greeting them, and meanwhile you reach your chair. Chair, yeah. तो वो छोटा सा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का जो टाइम है, वो भी आपने कैसे हैंडल करना है. वैसे छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत चीजें जानने को मिली मेरे को. तो यस, इट वाज वेरी हेल्पफुल. और सर ने डैप कैसे फिल करना है उस पर भी बहुत अच्छे इनपुट दिए थे. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल. Okay, so basically it is very important to give mock interviews because वहाँ पे आपकी बहुत practice हो जाती है. Yes, And ma'am. choosing a good institution जो आपके like हर एंगल पे फोकस कर पाए, वो भी बहुत important Yes, part है. Yeah, Yes, ma'am. because even when I'm listening your conversation, ये बात मुझे भी लग रहा है कि yeah, this was a very small thing, but it can make a lot of difference. कि how you will Yes, cover ma'am. that 30 second वाला जो time है. Okay, Yes. okay, great, great. Okay, so I think I'm done with my questions. So now there are only two things are left. One, your messages to the aspirants. And talking about aspirant, एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट करके, आपने देखी है वो? Yes, ma'am. ओके, Yes. सो कितनी सच्चाई है उस सीरीज में रियल लाइफ से? मैम, यस, बहुत सच्चाई है. काफी रिलेटेबल थी सीरीज. और काफी मोटिवेटिंग भी थी कि मतलब हमको गिव अप नहीं करना है. अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिली है तो उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना है. फॉर एग्जांपल, इन द एंड द मेन, आई थिंक उनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हीरो थे जो भी, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ही कैन राइट द टेस्ट अगेन. तो उस Yeah. अपॉर्चुनिटी का हमको बेस्ट यूज करना है. True. So stay motivated and don't give up. Okay. And one more thing, like, is it necessary to come to Delhi for your preparation? मैम, ये भी बहुत इंडिविजुअल चॉइस है. आई थिंक मैंने इसलिए चूज करा था क्योंकि मैंने सोचा कि आई शुड नॉट वेस्ट टाइम इन, मतलब अगर मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिली तो हो सकता है मैं अपने पाथ से डेविएट हो जाऊं. तो मेरे को स्टार्टिंग में ज्यादा आइडिया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि आई शुड गो. और लेकिन अगर आप नहीं भी जा सकते तो आप कुछ टाइम एक्सप्लोर करो नेट पे लोग क्या बोल रहे हैं. अगर आप समझ पा रहे हो एग्जाम की जो प्रोसेस है, तो और अगर आप अपने लिए एक कंसिस्टेंट रूटीन बना पा रहे हो, तो आई थिंक यू कैन डू वेल. मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दिल्ली जाओगे तो ही एग्जाम क्लियर होगा. सबका एग्जाम क्लियर होता है चाहे वो दिल्ली जाते हैं नहीं जाते. So you just have to be consistent and follow the right strategy. And for that you can look at all the sources. मतलब experiences topics की देख सकते हो, and just make a strategy that suits you. ओके, सो बेसिकली आपको अपनी प्लेस शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है, राइट सोर्स है, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो. आप ऑनलाइन कोचिंग की भी हेल्प ले सकते हो. Yes, ma'am. अगर आपका ग्रुप है, आपकी फैमिली में है, तो इन शॉर्ट आप मैनेज कर सकते हो कहीं से भी. जरूरी नहीं है कि यू हैव टू गो टू दिल्ली एंड यू हैव टू एनरोल इन ऑल दोज कोचिंग्स जहाँ पे रेट्स एंड भी बहुत हाई है, राइट? ऑलराइट. So, this is the last thing. If you want to give any messages to the aspirant, and then we will quickly move to the question answer session. And all those questions is going to be asked from these students who are with us. So I will be giving them opportunity. वो आपसे पूछ लेंगे. So before that, you can give, if you can give any messages to the aspirant, that will be very good. Yes, ma'am. मैम, मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं, चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इट्स एनीथिंग टू डू विद योर लाइफ,
there will be obstacles, there will be difficulties, लेकिन हमको डिफिकल्टीज से डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जब तक डिफिकल्टीज आती नहीं है तो हमें पता नहीं लगता कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम उनको फेस कर सकते हैं उन डिफिकल्टीज को. डिफिकल्टीज पुश यू टू द एज, बट दे आल्सो मेक यू स्ट्रॉन्गर. They also make you a more matured, more learned person. So, मतलब demotivate नहीं होना, just keep moving ahead, and I hope everyone succeeds. Great, well said. That's true. Okay, so I will not waste much of your time. So directly हम question answer session complete कर लेते हैं. So Aditya sir, if possible, please unmute other people as well and let them ask their question, whatever they are having in their mind. Yeah, guys, you can ask one by one your question to ma'am. Okay, if you have. Hello, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, this side Harish Patel from Madhya Pradesh. Sir, one of the sir also selected from my district. I am from Madhya Pradesh, Balahar district. Okay. And he got 650 rank. And he also from the NIT Jaipur. And you also from the NIT college. So, ma'am, as I know that you are come from very reputed college institute like from NIT. And you have also opportunity that time that you can could got good package, good placement from your college also, sir. But you quit the placement, and you wanted to prepare for the UPSC. So how you took this decision, and like what was your purpose, and like आपके कुछ friends जो है वो जॉब कर रहे थे और आपने डिसीजन लिया, तो मैम ये आपने कैसे मतलब एक हैंडल किया इस सिचुएशन को? तो प्लीज ब्रीफली बताइए. ओके. हाँ, एक्चुअली मैंने अपने जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी के लिए. तो मैं उनके जब उनके कांटेक्ट में आई तो मेरे को पता चला कि यूपीएससी के बारे में मतलब प्रिपेयर कैसे करना है. आई हैड अ वेग आइडिया, पर जब मैं उनसे मिली तो मेरे को कुछ ऐसे मतलब कॉन्क्रीट फॉर्म में मेरे को पता चला. और प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने इसलिए नहीं सोचा बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग माई यूपीएससी जर्नी. तो मेरे को ऐसे था कि ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट इट, क्योंकि मैंने काफी टॉपर्स की वीडियोस देखी थी और उस टाइम ईरा सिंघल मैम थे तो उनका रैंक 1, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, सॉरी. तो उन्होंने 2014. ओके 2014. ओके. तो उन्होंने ऐसे अपना जॉब छोड़ के देन शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. एंड आई थॉट कि मेरे को पहले जॉब में क्यों जाना है, आई शुड जस्ट डायरेक्टली गो टू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो आई थॉट माय गोल वाज सिंस माय फाइनल गोल वाज यूपीएससी, तो आई थॉट लेट्स जस्ट डायरेक्टली डू इट, व्हाई गो थ्रू ऑल दैट ट्रबल ऑफ फाइंडिंग अ जॉब एंड देन वेस्टिंग टाइम देयर. तो दैट वाज माय लॉजिक. एंड मतलब मैंने काफी ऐसे वीडियोस देखी थी टॉपिक की जो अपनी जॉब छोड़ के आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट डायरेक्टली गो फॉर इट. मैम एक और क्वेश्चन है. सुनिए ना, आप बचपन से मतलब जैसे सपना करती थी कि मेरे को आईएएस बनना है, यूपीएससी का एग्जाम देके मुझे कलेक्टर ही बनना है, अब बचपन से ही सोचती थी क्या? बचपन से ऐसे मतलब वेग आइडिया था कि हाँ इट्स एन ऑप्शन, बट बचपन से ऐसे कोई मतलब प्लान नहीं था. दैट प्लान तो आपका प्लान कब शुरू हुआ? Okay. Yeah, as I told before, in my last year or third year of college, I had met a few friends of mine. They were also preparing for UPSC. तब मेरे को पूरी प्रोसेस के बारे में पता चला कि ऐसे एग्जाम होता है, ये सिलेबस है एंड सो ऑन. तो तब मैंने ये कॉलेज के एंड में आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर UPSC. ओके, गुड. तो इसमें बहुत सारे एग्जाम होंगे ना, जैसे आपको डर नहीं लगा होगा, जैसे क्या बोलते हैं प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू में जब जाने आपने जब एग्जाम राइट किया तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा उसमें कि कैसे करना है? जैसे हम लोग किसी एग्जाम में अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा हाथ तो जरूर कांपेगा ना, तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ?
हाँ, डर तो लगता है, लेकिन आप डर को उसको कम कैसे कर सकते हो? बाय प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। आप अगर पढ़ाई आपने करी है, आपके टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डर कम कम होता जाएगा एंड यू विल बी रेडी फॉर द डी। हाँ हाँ, उसमें दो क्वेश्चन आते हैं ना। अदरवाइज जैसे हम लोग मलयालम में, जैसे केरला में तो मलयालम बोलते हैं, ओके। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पे इंग्लिश, क्या बोलते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो जैसे हम लोग केरला में है, तो हिंदी में हम लोग एग्जाम दे सकते हैं क्या? जैसे परीक्षा दे सकते हैं उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में भी मीडियम अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में दे सकते हैं एग्जाम। जी, थैंक यू। Okay, just 1 minute. Ritu, if you have further any doubts, you can contact us at UPSC launch. So right now we are not having much time, so we will be quickly finishing all those queries and doubts. You can separately text me, okay? ओके मैम। Okay. Yeah. So moving on, who wants to ask next question? Good evening, ma'am. I'm Tarushi Katyar, and I'm a second year undergraduate student of Economics Honors at Lady Shri Ram College for Women. According to you, is this the right time to start preparing for UPSC, and how to maintain the consistency for this exam along with my graduation studies? ओके, या आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम। मतलब कॉलेज में हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन, एंड इट विल ऑब्वियसली गिव यू एज बिफोर द अदर स्टूडेंट। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी, आई थिंक आपको बहुत ही बैलेंस लेके चलना होगा। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी मतलब फोकस लूज नहीं करना, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। मतलब यूपीएससी में भी इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विद ग्रेट वेटेज, और इनफैक्ट आपके जो इंटरव्यू है उसमें भी आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यू विल हैव टू बैलेंस कॉलेज भी और यूपीएससी भी। और यूपीएससी में आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकते हो कि आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स आपके पास कितना टाइम बच रहा है, और उतने टाइम में आप कितना मैनेज कर रहे हो, कितना मैनेज कर पा रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? विद बेसिक बुक, बेसिक सब्जेक्ट जो आप हमारे प्री में आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड सो ऑन। So make a consolidated list of the basic books. Start with Lakshmikant, Modern History की Spectrum, and keep reading 10 to 20 pages of these books. ऐसे मतलब you can make a target for yourself कि 1 month I will complete Lakshmikant, next month I will complete Spectrum. तो अब आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको इतना मतलब हरी करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। Yes, Hello, ma'am. ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Hello. I have one question. Yes, please. Ask your question. My graduation subject is botany, zoology, and chemistry. Okay. And which one best for me is optional subject? Sorry, I did not get you. Ma'am, my background is graduation background is science. Yes, yes. Then, Okay. what was the optional subject for me? Okay. I think this will be your individual decision. I think you can search for some material that is available on your graduation subject. For example, I think chemistry is there in UPSC optional, and zoology I think also is there. You can search if there is some material available, consolidated material available on these areas. And if you do find that material, try to go through it, start reading a few topics, and also see the previous year questions that are being asked from chemistry, from zoology, and whatever options that you are eyeing, and try to analyze, can you answer those questions with your present knowledge. And also, as I mentioned before,
try to take many factors into account. For example, are those optionals performing well in past years? What are the scores in chemistry or zoology? Are they performing consistently? And can you study that optional to the depth that is required by the UPSC? This you can judge by seeing the UPSC past year questions of the optional. And moving past this, you can also see whether you can manage by not studying the GS, a subject which overlaps with GS. So you would have to devote separate time for your technical optional and separate time for general studies. So take a few of these factors into account and then make a wise choice. Okay, ma'am. Is required Hello, for. hello, ma'am. Again, congratulations to you for your success. Thank Ma'am, you one so much. question from my side, like before prelims examinations, so how many mock tests you given? Okay, so my strategy was that I'll revise more and more, and I'll give the mock test topic wise. So, example, if I have done history, so I'll just search some paper online which covers the history part. So, I think topic wise, one or two tests I have given on each topic, and full length tests around 4 to 5 full length tests. That mock test you're saying topic wise means like suppose we covered modern history, so Yeah. that mock test totally depends upon that modern history. Yeah, yeah, you can find those mock tests online. There are many websites and sources available. You just search that modern history, sectional mock test, UPSC, and you'll find something. Okay. Thanks, ma'am, sharing this content. Welcome. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, this side Palladutta from Visakhapatnam. Ma'am, Hi, I have a Pallav. query related to your interview. Like, since you are from an engineering background, so what are questions that have arisen in your interview? Like, you are from Yeah, ECE, yes, so yeah. So my background was electronics and communication. So I was asked a question on the 5G technology. There are a few emerging technologies that are always in the news. So we have to prepare the topics that are application based that are in the news. So I had prepared topics like artificial intelligence, 5G technology, and the fourth industrial revolution, and so on. So the question that I was asked was, what is 5G technology? Do we require 5G technology? And if 5G comes, do we have to change our smartphones? And if we do change our smartphones due to 5G technology, will it be more expensive for the poor? How will they handle it? So, a lot of cross questions on that single topic will there. ma'am, anything related to final year project? No, I was not asked a question on my final year project, but I think candidates are asked on their final year project. So it is a wise option to always prepare it well for the interview. Thank you so much. Hello, ma'am. I have a Hello. question. Can you please, in brief, can you tell us about your mistakes in the previous attempts and also emphasize on how to align our preparation in right direction? Yeah. Okay, so mistakes in my previous attempt, in the first attempt, uh, I did not prepare for the mains. For example, when I gave the my attempt in 2018, I cleared my pre, but I wasn't prepared for the mains. So I did not keep my preparation integrated. I thought I'll just prepare for pre and then I will see if I clear or not. So means I did not give with full preparation, so that's why I did not make it to the interview stage.
So my suggestion would be to keep your preparation very integrated. You have to prepare for pre and the mains at the same time. Because if you clear pre, then you have to write mains within 2 to 3 months, and it will be hard covering the syllabus of mains in those 2 to 3 months. So keep your preparation very integrated. For example, if I can give you an example, if you are preparing for the 22 attempts, so I think this is October. So you have November, December, January. November, December, January, you can devote to mains. For example, cover your optionals, cover your mains topics like essay, ethics, and so on. And then from February, March, April, May, you can devote to only pre, because pre is in June. So this way you can manage your time. हेलो गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मैं पवन कुमार बीटेक छात्र हूँ फाइनल ईयर से। ब्रांच मेरा मैम आपकी जैसा इसी ब्रांच है। और मैम ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैम फाइनल ईयर में बीटेक के काफ़ी छात्रों का प्लेसमेंट होता रहता है, तो मैम उससे जो है कि डिमोटिवेशन कभी कभी आता है, तो उसको कैसे दूर करें पढ़ाई के? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैम। ओके, मतलब अभी आप अनएम्प्लॉयड हो और आपके फ्रेंड्स प्लेस है, ये वाला डिमोटिवेशन। मतलब कि साथ में प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे किसी का टीसीएस में हो गया, इन्फोसिस में हो गया। अभी मैं फाइनल ईयर छात्र, 7th सेमेस्टर चल रहा है। ओके, तो मतलब आप प्लेसमेंट को मतलब आपका गोल क्या है अभी, प्लेसमेंट या फिर यूपीएससी के लिए? नहीं, गोल तो यूपीएससी है, लेकिन मतलब फ्रेंड लोग का हो रहा है तो उससे डिमोटिवेशन सा हो रहा है कभी कभी। इट्स ओके, आपको आपके रीजन क्लियर होने चाहिए कि आपको यूपीएससी क्यों करना है और आपको प्लेसमेंट क्यों नहीं लेना। जी मैम। है ना? तो मतलब ऐसे अगर प्लेसमेंट आपका गोल है ही नहीं, तो अगर लोग प्लेस हो रहे हैं तो उससे आपको मतलब इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल ही डिफरेंट है। जी मैम। यू नो, समझ रहे हो मेरी बात? एंड दैट गोल इज इवन, अगर आप उस गोल को एम कर रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जी मैम। और इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप बहुत सीखोगे और आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होगी, आपका माइंड बहुत ओपन होगा। सो यू डोंट नीड टू फील डीमोटिवेटेड एट ऑल। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। हम सबकी जर्नी डिफरेंट होती है और हम मतलब कंपैरिजन हमेशा डिमोटिवेट करेगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरी जर्नी डिफरेंट है, मैं अपना अलग पाथ बनाऊंगा। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन और था आपसे कि मैम जैसे अभी मेंस का मैं तैयारी कर रहा हूँ, पहले जो है कि हम ऑप्शनल कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में जैसे कोई एक जीएस का पार्ट में लेकर चल रहे हैं, जैसे अभी GS2 लेकर चल रहे हैं। तो मैम कहने का मतलब ये मैम कि पहले प्रीलिम्स का तैयारी करें या फिर मेंस का, मतलब इसमें कोरिलेशन ही बताइएगा मैम, या दोनों को साथ में लेकर चलें? ओके, तो आपने अभी बेसिक सारे सब्जेक्ट्स मतलब रीड कर लिए होंगे जी मैम। एनसीईआरटी रीड कर लिया मैम, और उसके बाद अभी मैम ऑप्शनल चल रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर अभी मैंने जैसे पहले बताया कि अभी आप पूरा मेंस पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी है जो आप फुल डिवोट कर सकते हो मेंस को, ऑप्शनल तैयार करने में, एसे तैयार करने में, एथिक्स, GS 1, 2, 3, 4 अपने नोट्स मेंस के लिए बना सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास मेंस का तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपको 4 मंथ तो देने ही पड़ेंगे प्री की तैयारी के लिए। तो अभी आप फुल अपना टाइम डिवोट कर सकते हो मेंस के लिए। प्री की तैयारी साथ में कैसे चलती जाएगी, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होगे तो करंट अफेयर्स आपके कवर होते जाएंगे। आप कोई करंट अफेयर मैगजीन पढ़ोगे, उससे करंट अफेयर्स कवर होते जाएंगे। तो करंट अफेयर्स हो गए, फिर मेंस में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप डेप्थ में पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली प्री में भी काम आएंगे। क्वालिटी अगर GS2 अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ इश्यूज जो आते हैं GS2 में वो प्री के लिए भी काम आएंगे आगे। तो आप अभी मेंस की डिवोटेडली तैयारी करो, फॉर एग्जांपल इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और उसके बाद आप फुल फ्लेज प्री को डिवोट कर सकते हो, रिवीजन एंड मॉक। ओके मैम, इंटरव्यू में मैम जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं और बीटेक के अगर जैसे जा रहे हैं, तो मैम उनको कैसे किस तरीके का देखा जाता है? बीटेक वालों से सवाल किस तरीके का ज़्यादातर पूछने का चांसेस होता है इंटरव्यू में?
या फिर टेक्निकल फील्ड से? जी मैम। जैसे मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो इस मतलब ये एरियाज टेक्नोलॉजी वाले जो एरियाज हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मतलब आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से इश्यूज इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कैसी है। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को आप कंपेयर करो चाइना के साथ, चाइना में अच्छा क्यों जा रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही, इंडिया में फैब्रिकेशन वाले यूनिट्स नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब जो चीजें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं ज्यादा। ओके मैम, थैंक यू मैम। I think we all are like finished with your doubts and all. किसी और को कोई doubts है? All right, fine. So thank you. Ma'am, I have one question. Can I ask? Yeah, Hiten, you can ask it, ma'am. Yeah, ma'am. While practicing answer writing, did you did self evaluation or you got your answers evaluated from somewhere else? Yeah, I think when I wrote answers, we are also provided with the model answers, whether we join a test series or whether we are pursuing some program on online platforms. We are also provided with the model answers. So I used to compare my answers with those model answers and see what are the points that I did not write, or how could I structure my answer better. So I used to improve my answer writing with the help of those model answers. And in addition to that, I also did join a test series. So in that test series, my answers also got evaluated by a third person. So I followed both the ways. I did my own evaluation also with the help of model answers, and I also joined a test series. Okay, thank you, ma'am. Okay, guys. So I think we had a wonderful session with Kirandeep Kaur. So thank you very much, Kirandeep Kaur. And thank you all for joining us here. And I would like to add few points. आप लोग की बातों से I am having this kind of a idea that you are having a lot of doubts regarding how to prepare, and if you are in the college, then how you can start your preparation and how to write answer writing, etc, etc. So we at a UPSC launch, we have a different platform, different courses जो आप सबके लिए available है, even if you are in college, in your first year, second year, or you are actually सहयोग की बात है ना कि एक और वहाँ अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का ओके या फिर आप लोग इस साल आपके प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हो और आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोर्सेज फॉर डिफरेंट स्टेजेस, फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू, इवन इफ यू आर इन कॉलेज और अभी आप इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ भी, वी हैव डिफरेंट areas. Okay, so you can contact us at UPSC launch. You can post your answers, like some of you have said that you are right now in the process to writing answers, right? So you can post your question there. We will be evaluating your answers, and within 1 or 2 days you will be getting the right answer with the right thing where you are lacking. Talking about other areas, we also provide test series and other stuffs, so you can actually visit us at UPSC launch and you can contact us there, and we also provide mentorship for almost 24 hours. So aap log wahan pe contact kariye, you will be getting a fair idea. So with this, we are winding this session. Thank you all, and last, thank you Kirandeep, thanks a lot. Thank you. Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you, ma'am.